والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى آله وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، آج کا یہ برکتوں والا دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے نزول کا دن ہوتا ہے۔ اس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے کر سکتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر یہودی جو پہلے سے موجود تھے ان لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ اور سبب دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورے کے دن خاص نعمتیں عطا فرمائی تھی، اور فرعون کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی دن فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سب نعمتوں کے شکرانے میں یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد ایک روزہ اضافہ کر لیں گے، یعنی 9ویں محرم الحرام اور 10ویں محرم الحرام، یہ 2 دن روزہ رکھنا مسلمانوں کے لیے سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، اور یہودیوں کی مشابہت یعنی ان کے جیسا عمل کرنے سے بچنے کے لیے 2 روزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دی۔ ایک روزہ تو وہ رکھتے تھے، ایک رکھیں گے تو ان کے جیسا عمل ہوگا۔ مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ غیروں کے طریقے اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی کیوں نہ ہو۔ یہودیوں کے پاس بھی روزے تھے، ان کے پاس بھی نمازیں تھی۔ اہل اسلام کے پاس جب روزے کی بات آئی تو ایک روزے کا حضور نے اضافہ فرمایا تاکہ یہودیوں کے جیسا عمل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال آج کا دن بڑی فضیلتوں والا دن ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کو عاشورے کے دن فضیلتیں عطا فرمائی۔ تو یہ دن بڑی برکتوں والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ حاضرین، آج کے دن کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک عاشورے کے دن کی فضیلت جتنی تھی، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس کی فضیلت اور زیادہ ہو گئی، اور وہ زیادہ اس لیے ہوئی کہ اس دن خاص طور پر حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے، برگزیدہ محبوب نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا میں آزادی کے دن واقع ہوئی۔ تو شہادت کی نسبت بھی اس دن سے حاصل ہو گئی، اس لیے عاشورے کے دن کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال حاضرین، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا، اہل بیت کرام کی فضیلتوں کے متعلق چند احادیث پاک اور ان حضرات کی زندگی کے کچھ احوال اور واقعات انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت کے 4تھے سال ہوئی، یعنی نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے 13 سال کے بعد شہر مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال جلوہ افروز رہے۔ 10 سال کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب ہجرت مدینہ کا 4تھا سال آیا، شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اس سے تقریباً 8 یا 10 مہینہ پہلے
हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई थी। हाज़िरीन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत माह शाबान में हुई और आपकी शहादत माह मुहर्रम में हुई। और आपकी जुमला उम्र शरीफ, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उम्र अपनी गुजारी है इस दुनिया में, वो जुमला 58 साल है। 58 साल आपकी उम्र शरीफ है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के वक्त में इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 8 साल थी और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 7 साल थी, 7 साल कुछ महीने। तो इस कम उम्री में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप ये दोनों हजरात नवाज से जुदा हुए, लेकिन इस कम उम्री में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया और आपको दीन की शख्सियतें करार दिया। दुनिया में आने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो या तो दुनिया के होते हैं या हमसे रिश्तेदारी का ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सहाबा किराम हैं, अहले बैत किराम हैं, ये सारी शख्सियतों का ताल्लुक दीन से है। इनसे हमारी मोहब्बत दीन की वजह से, ये हमारे दीन में, इस्लाम में, ईमान में पेशवा और इमाम है। खानदानी ताल्लुक हो न हो, लेकिन हमारा ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा का सहाबा किराम से भी, अहले बैत किराम से भी इस वजह से है कि वो दीन के सुतून हैं, दीन की बुनियाद है। उन शख्सियतों को अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत पाक बनाया। उनके दिल साफ थे, जिंदगी पाक थी, गुनाहों से दूर थे, नाफरमानियों से दूर थे, परहेजगारियों और दिल की सफाई का आलम यह था कि फरिश्ते भी उनके आमल पे नाज करते थे। ऐसी पाक शख्सियतें हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो कैसी शख्सियतें, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ऐसे लोगों को, तो क्या तसव्वुर करेंगे। अलबत्ता उनके सीरत, उनके अहवाल, उनकी फजीलतें अहादीस शरीफा की किताबों में और कुरान पाक में फजीलतें, सीरत सहाबा किराम की किताबों में इन सब की फजीलतें जिक्र की गई हैं, तभी हम उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहरहाल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत किराम का ताल्लुक माह मुहर्रम और आज के दिन से बिलखुसूस है। इस मुनासबत से अहले बैत किराम की कुछ फजीलतें हम आपके गोशेगुजार करेंगे। कुरान मजीद में तकरीबन 10 से ज्यादा आयतें हैं जिनमें अहले बैत की फजीलत बयान की गई। उनमें से एक मशहूर आयत करीमा है सूरह अहज़ाब की 22वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमको पाक करने का इरादा फरमाता है और तुम्हें नापाकी से दूर रखता है। इस आयत पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की 2 अहमियत वाली फजीलतें बयान की गई हैं। एक फजीलत ये कि अल्लाह ने उनको पाक किया। आप देखते हैं हम अपने आप को पाक करते हैं, मुंह धोते हैं, चेहरा धोते हैं, गुस्ल करते हैं, वुजू करते हैं, कपड़े धो लेते हैं, तो ये हम अपने खुद को हम पाक करते हैं। लेकिन अहले बैत और सहाबा किराम वो शख्सियतें हैं कि अल्लाह ने उनको पाक किया है, उन्हें पाक करके ही पैदा किया। कुफ्र और शिर्क उनके पास, अहले बैत किराम के पास कभी नहीं आए। यानी नबी के वो घर वाले जिनके ऊपर चादर उड़ाकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीफ फरमाई थी और ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअना उहिब्बुहुम व अहिब्बु मन युहिब्बुहुम, कि अल्लाह ताला ये मेरे घर वाले हैं, इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनको अपना महबूब बना ले और जो इनसे मोहब्बत करे उनको भी अपना महबूब बना ले। ये कौन शख्सियतें हैं? सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन पर अपनी चादर उड़ाई और उसके बाद ये फरमाया कि अल्लाह इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा, जो इनसे मोहब्बत रखे उनको भी महबूब बना ले। तो पता क्या चला, नबी के घर वालों की मोहब्बत ईमान का जुज है। अगर कोई मोमिन कलिमा पढ़ता है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों से, अहले बैत किराम से मोहब्बत नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो कामिल मोमिन नहीं है।
ईमान की रोशनी, ईमान की लज्जत, ईमान की बुलंदी उसके दिल में नहीं पाई जाती। वो कलीमा पढ़ने की वजह से मुसलमान कहलाएगा, मगर ईमान का जो लुत्फ है वो उन लोगों को नहीं मिल सकता जो अहले बैत किराम से मोहब्बत नहीं रखते। हाजिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पाक किया। किस तरीके से पाक किया कि कभी इनसे न कुफ्र हुआ, न शिर्क हुआ और ना ही कोई इनसे खताएं हुई। रब ताला ने इनको खताओं से, कुफ्र और शिर्क से, नजासतों से पाक रखा है। कुरान मजीद की आयत सूरह अहज़ाब में रब ताला फरमाया। हाजिरीन, जैसे उसको हम समझना चाहते हैं तो देखिए, दीगर बहुत सारे हजरात हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने पाक किया, सहाबा किराम की शख्सियतें, मगर कुछ अरसा पहले बाद ऐसे भी सहाबा किराम गुजरे हैं कि वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, बाद में ईमान लाए। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत सहाबा किराम में तकरीबन ऐसी शख्सियतें हैं उनसे कभी कुफ्र और शिर्क नहीं हुआ। अहले बैत किराम में जो शख्सियतें हैं वो पूरी वैसी है, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला, कभी इनसे न कुफ्र हुआ न शिर्क हुआ। दौरे जाहिलियत में भी, जाहिलियत के दौर में भी उन्होंने कोई बुत परस्ती नहीं की। ऐसे खास अफराद हैं, उनके दिल बहुत पाक थे, उनकी पाकी और तहारत का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। इसको सामने रखते हुए हम अपने और उन बुजुर्गों के दरमियान में मुवाज़ना कर सकते हैं और तकाबुल करके समझ सकते हैं कि उनका मकाम क्या है, हमारा मकाम क्या है। हमसे गुनाह भी होते हैं, झूठ भी हो जाता है, खताएं भी हो जाती है, तबीयत के एतबार से गुस्से में कभी किसी पर नाराजगी भी हो जाती है, मगर ये सारे कामों से वो पाक थे, इसलिए अल्लाह ने उनको पाक करने का जिक्र फरमाया, पाक भी किया और खताओं से भी उनको दूर रखा। कुरान पाक अहले बैत किराम के बारे में एक बात तो ये इरशाद फरमाता है। दूसरी आयत करीमा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी आप फरमा दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें अल्लाह का इरफान दिया, ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल किया, अल्लाह का कलाम कुरान तुम्हें अता किया, तुम्हें मुसलमान बनाया, इसके बदले में मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई चीज का मुतालबा नहीं करता, मगर याद रखो कि मेरे कराबतदार यानी रिश्तेदार, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखो। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म कुरान पाक में आया है। रब ने फरमाया नबी आप कह दीजिए, अल्लाह का फरमान है, नबी के जबान से कहा गया। अहले बैत किराम कराबतदारों की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हाज़िरीन, कराबतदार किसको कहते हैं ये भी समझने की जरूरत है। अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाता है तो आमतौर पर लोग समझते हैं इसमें चार शख्सियतें, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यकीनन ये चार शख्सियतें तो अहले बैत में से हैं, मगर अहले बैत की शख्सियतें, अहले बैत के जो अफराद हैं वो बहुत ज्यादा है। उसको समझने के लिए मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बुखारी, तिरमिज़ी वगैरह की हदीस में बयान करूंगा कि हाज़िरीन, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी औलाद और हजरत अली के एक भाई हैं हजरत अकील, उनकी औलाद, फिर उनके और एक भाई हैं हजरत जाफर तैयार, उनकी औलाद, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दो और शहजादे, हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, ये और इनकी औलाद, ये सब अहले बैत किराम हैं, ये सब अहले बैत हैं। और अहले बैत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे, शहजादियां, चारों बेटियां और तीन शहजादे, तीन बेटे, ये सब अहले बैत में। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शहजादियां हैं उनके बच्चे भी अहले बैत में, जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दो हुजूर की शहजादियां आई, तो उनके जो बच्चे हैं हजरत अब्दुल्ला, अगरचे कि उनका उम्र 6 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, वो भी अहले बैत में है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी शहजादी हजरत ज़ैनब, उनके दो, एक लड़का एक लड़की थी, वो भी अहले बैत में से, और वो दोनों ईमान लाए थे, जंगों में भी शरीक हुए। तो इस तरह अहले बैत का एक बड़ा मफहूम है, एक वसी मफहूम है।
हाँ, उन सब में ज्यादा हुजूर को जो महबूब है वो 4 शख्सियतें, हजरत अली, हजरत फातिमा, हुसैन करीम रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ये मुख्तसर सी चंद वजाहतें थी अहले बैत किराम के मुताल्लिक, ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो कि दीन इस्लाम में कानून क्या है, वजाहतें क्या है, तफसीलात क्या है। हाज़रीन, अब हम अर्ज करेंगे हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का मामला। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि हुजूर अपने घर में ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई सवारी होती, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर इमाम हसन इमाम हुसैन सवार बैठे हुए हैं, और हुजूर उन्हें ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे कोई सवारी लेके जाता है। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबान से कहते हैं कि निअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है या रसूल अल्लाह। यानी हुजूर अपने नवासों को अपनी पीठ पे सवार किए, तो हजरत उमर नबी की तारीफ कर रहे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वनिअमर राकिब या उमर, ऐ उमर सवारी तो बहुत अच्छी है, सवारी तो बहुत अच्छी है, मगर सवार भी कितना अच्छा है। गोया के हुजूर ने यह फरमाया कि उमर सिर्फ मेरी तारीफ ना करो, मेरे नवासों की भी तारीफ करो। तो पता ये चला कि सहाबाए किराम को हुजूर ने ये सबक दिया है कि जब तुम मेरी तारीफ करो तो मेरे शहजादों की भी तारीफ किया करो, उनकी भी ताजीम किया करो। उन सहाबाए किराम को ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, 1400 साल के बाद आने वाले हम मुसलमानों को बताने की जरूरत थी, वरना वो तो पहले ही से ताजीम करते थे, इज्जत करते थे, उनको मालूम है। इतना सब कुछ देखने के बाद क्या वो सहाबाए किराम, अहले बैत किराम की इज्जत ना करेंगे? नबी जिनको अपने पुष्ट पे सवार करते, जिनके कदम, नबी के कदम सर पे रखने को सहाबा अपनी मेराज समझते थे, उनके पुष्ट पर नवाज से सवार हैं, तो क्या सहाबा उनकी इज्जत न करेंगे, मोहब्बत न करेंगे? मुमकिन ही नहीं है। दरअसल समझाना हम जैसे लोगों को, इसलिए बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की तारीफ फरमाई और इस तरीके से उनका दिल हुजूर बहलाया करते थे। और एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, ये इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, हदीस शरीफ की बड़ी मशहूर किताब है शोबुल ईमान, और एक हदीस की किताब है कंजुल उम्माल। यह हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में लिए हुए और हुजूर तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते हुए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर आते हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुंह अपने मुंह के करीब लेकर उनके मुंह में अपनी जबान हुजूर अता फरमाते हैं। इमाम हुसैन नबी की जबान चूसने लगते हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन नबी की जबान चूस रहे हैं और तभी हुजूर इमाम हुसैन की जबान चूस रहे हैं, और ऐसे चूस रहे हैं जैसे कोई आदमी खजूर चूसता है। मिसाल देकर फरमा रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, आप गौर कीजिए, हम भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर इतनी मोहब्बत के मुंह में जबान दें या बच्चे की जबान मुंह में ले, ऐसी मोहब्बत तो इंतहाई कम देखने को मिलती। गोया मोहब्बत करने का अंदाज ऐसा होता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासों से प्यार मोहब्बत करके बताया कि ऐसी मोहब्बत की जाती है अपनी औलाद से। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि खजूर के जैसा क्यों फरमाया। मिसाल देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम मिसाल देते हैं बहुत सारी चीजों की, कितना सफेद कपड़ा है दूध के जैसा, क्या बहादुर आदमी है शेर के जैसा, मिसाल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हुसैन की जबान चूस रहे हैं और उन्हें चुसा भी रहे हैं, लेकिन खजूर के जैसा महसूस हो रहा है। माना यह है कि इनको जबान में वो लज्जत मिलती थी जो किसी आदमी को खजूर खाने में मिलती है, मिठास महसूस होती थी। ये मोहब्बत की इंतहा है। अब आप सोचे होंगे कैसा हो सकता, तो जनाब देखिए, हम बीमार हैं तो हमको महसूस नहीं होता। वो सेहतमंद हजरात थे, उनका दिल सेहतमंद, उनकी रूह सेहतमंद, वो रूहानियत वाली शख्सियत है। हम जिस्म की कसाफतों में, गंदगियों में डूबे हुए,
हमको महसूस नहीं होता। ऐसा ही है जैसे कि बुखार ज़दा आदमी को मीठा पानी भी कड़वा दिखता है, ऐसी मोहब्बतें हमें महसूस नहीं होती, मगर उनको वो मोहब्बतें दिखती थी, महसूस होती थी। अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या साहबी रसूल को नौजुबिल्लाह हम झूठा कहेंगे? ये बात तो मानना पड़ेगा, समझ में आए ना आए लेकिन मानना तो पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे कैसे मानेंगे भाई, समझ में नहीं आए तो क्यों कैसे माने? तो मैं आपको मिसाल दूंगा, हमारा ईमान है कि नहीं? ईमान ये है कि भाई जब आदमी को, नेक आदमी को कब्र में दफन कर दिया जाता है, सही बुखारी की हदीस शरीफ है, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते उसके पास आते हैं, उससे सवालात करते हैं, वो सवाल के जवाब देता है तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ जमीन 70 गज चौड़ी लंबी कुशादा हो जा इस नेक आदमी के लिए। आपने गड़ा खोदा था 4 गज लंबा 2 गज चौड़ा, मगर वो 70 गज कैसे हो गया? क्या दिखता है कभी किसी आदमी को लिटाने के बाद से जमीन का गड़ा खबर इतनी चौड़ी हो गई, इतनी लंबी हो गई? ये बात तो कभी अकल में नहीं आती, महसूस भी नहीं होती। लेकिन चूंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मानना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ईमान है, ये ईमान का नाम ही ईमान बिल गैब है। गैब का मतलब जो चीज छुपी हुई है उसे मानना। नजर आने वाली हर बात को सब मानते हैं, जो नजर नहीं आता, जो महसूस नहीं होता, उससे मानने का नाम ही गैब है। अगर हम ये कहेंगे नहीं मैं दिखे तो मानूंगा, महसूस हुआ तो मानूंगा, तो फिर क्या अल्लाह का भी इनकार करेंगे? कब देखा है हमने अल्लाह ताला को, कब महसूस किया? मानेंगे तभी तो मोमिन है। जन्नत का इनकार करेंगे, कहाँ देखा है हमने जन्नत को? खबर में आजाब होता है, सवाब मिलता है, महसूस हुआ है कभी? खबर वाले भी कभी चीखते नजर नहीं आते क्यों उनको आजाब हो रहा है? तो फिर महसूस ना होने पर भी जब ये सब बातें हम मानते हैं, तो इस तरह की रिवायतें जो सहाबा किराम से मनकूल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को जबान चुसाते थे और खजूर के जैसी शीरीनी मिठास महसूस होती थी, तो वो लज्जत को बयान किया जा रहा है। ये मोहब्बतें हैं हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के मुताबिक। सही बुखारी की हदीस पाक में एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कम उम्र थे, इतने कम उम्र के सही तरीके से जमीन पर कदम जमा न सक रहे थे, लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, पांव कदम लड़खड़ाए। उन्हें देखकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा रोक दिए, मिंबर से उतर गए, सहाबा किराम को हटाते हुए इमाम हसन हुसैन के पास पहुंचे, उन्हें गोद में लेकर फिर मिंबर पर आए और उसके बाद फरमाया, खुतबा दे रहे हैं, खुतबे में फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, ये मेरे नवासे हैं, इनसे मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी इनसे मोहब्बत करना। फिर अर्ज करते हैं, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उनको भी तो अपनी मोहब्बत अता फरमा। अहले बैते किराम की मोहब्बत दो तरफा मोहब्बत है। एक तो हर मुसलमान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, कोई शक की बात ही नहीं। मुसीबत जिंदगी भर भी मुसीबत आए तो कभी एक लफ्ज नहीं बोलते अल्लाह के खिलाफ, क्योंकि परवरदिगार है, हाँ उसकी मर्जी है, मुसीबत दे राहत दे उसका इख्तियार है। वो राहत भी दे तो वो नेमत है, शर्त यह है कि वो मुसीबत दे दी तो नेमत है। मुसीबत में लज्जत महसूस करने की आदत डालनी चाहिए। वो कैसे होती है? एक बड़े बुजुर्ग है, सहाबी रसूल हजरत इमरान बिन हुसैन, ये हुसैन सीन से नहीं है, स्वाद से, तो इमरान बिन हुसैन, उनके मुताबिक आता है 20 साल बीमार थे, बिस्तर पर पड़े हुए थे, करवट नहीं बदल सकते थे। उनसे पूछा जाता था कैसी गुजर रही है, कहते अल्लाह का शुक्र है। बिस्तर पर 20 साल से मगर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आज हम 2 महीने कारोबार नहीं हुआ तो परेशान हो जाते, शिकायतें करते रहे, नुकसान हो गया कारोबार में तो लोगों से शिकायतें। अल्लाह जो दे उस पर राजी रहने की आदत डालनी चाहिए। तो बहरहाल ईमान हमारे पास माशाअल्लाह वो ताबनाक ईमान है, रब का शुक्र है। 1400 साल के बाद भी पैदा हुए हैं, मगर इतना तो एहसास है कि माशाअल्लाह हमारा रब मौला परवरदिगार है। मुसीबत भी दे तो अल्लाह का दुआ करते हैं, मगर कभी ज़बान से कुछ नहीं कहते। ये कैफियत है। तो हाज़रीन, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जिंदगी में भी ऐसी मुसीबतें आई
नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको अपनी गोद में लेकर पहले ही से बता रहे हैं कि इनकी जिंदगी में आगे चल के मुसीबतें आने वाली हैं, तुम इनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत करो का माना यह हुआ कि आइंदे जमाने में अगर इस तरह के कोई हालात बन आए तो मेरे नवासों के साथ रहो, उनकी ताजीम करो। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाई किराम के जरिए बाद में जो बदबख्त इमाम हसन को जहर दिए, इमाम हुसैन को शहीद किए, उनको बताना मकसद था कि इनकी फजीलतें क्या है। सहाबाई किराम तो इज्जत करने वाले थे, लेकिन बाद में जो लोग आए वो इंतहाई जालिम थे, दुनिया परस्त थे, उन लोगों को सबक सिखाना मकसद था। तो हसनैन करीमैन की मोहब्बत, दो तरफ से मोहब्बत मिलती है। एक तो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करता है। न सिर्फ रब हमसे मोहब्बत करता है, बल्कि हम जो रब से मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत कबूल भी होती है। मोहब्बत तो हम करते हैं, क्या जरूरी है कबूल हो? तो कबूल भी होती है अगर अहले बैत किराम के वसीले से मोहब्बत की जाए। तो गौर किया जाए कितना बड़ा मकाम है हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला। अब एक बात मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सहाबाई किराम कैसी मोहब्बत करते थे, ये बात गौर करने की है। इस वक्त हमें जानना बेहद जरूरी है, इसलिए कि हाज़िरीन इस दौर में सोशल मीडिया में हर तरह की गलत सलत गुमराही की बातें आम हो रही है। लोग अक्सर फोन में रहते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं, सही समझ बैठते हैं। बाज ऐसे गुमराह फिरके के लोग हैं जो अहले बैत किराम से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो सहाबाई किराम से नफरत करते हैं। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, और बहुत सारे सहाबाई किराम। तो उन सहाबाई किराम से वो मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं। तो गौर करने की बात है कि अहले बैत किराम की जितनी फजीलतें आई हैं वो सारी फजीलतें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसने सुनी? 1,24,000 सहाबाई किराम ने सुनी। 1,24,000 सहाबा अहले बैत की मोहब्बत और उनकी फजीलत जो हुजूर से सुनी है ना बयान करते तो अहले बैत की फजीलत क्या है हमको कहां से मालूम होती? तो सहाबाई किराम नबी के वफादार है, अहले बैत किराम से मोहब्बत करने वाले, इनके दरमियान में कोई इख्तलाफ, कोई झगड़े और कोई दिल की कदूरतें बिल्कुल नहीं थे। इनके दिलों को अल्लाह ने पाक किया था, नबी ने पाक को साफ फरमाया था। ये हम जैसे नहीं थे कि थोड़ी सी बात हो गई तो हमारे दिलों में नफरतें आ जाती है, भाई भाई से झगड़ने लगता है, पड़ोसी पड़ोसी को तकलीफ देता है। कि दिलों की कदूरतें हमारे नापाक दिलों में रहती है, वो पाक दिलों में नहीं रहती। तो कैसे मोहब्बत करते थे आप गौर कीजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल अक़दस के बाद 2.5 साल, तकरीबन 2.5 साल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत रही, उसके बाद आपका विसाल हुआ। इन दिनों में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों को तलाश करती, खादिमा को भेजती कि देखो बच्चे कहाँ हैं। वो गली कूचों में तलाश करके आती, नजर नहीं आ रहे हैं, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि मेरे अब्बा हुजूर के बाद अगर मेरे बच्चे किसी के घर में रहते हैं तो वो अबू बकर का घर है, जाओ उनके घर में तलाश करो, वहां होंगे, बुला लो। गली कुचों में उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। कितनी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन। उस वक्त आपकी उम्र 10-11 साल थी, तो इस उम्र में हजरत सिद्दीक अकबर के घर में रहते थे, हजरत आयशा सिद्दीका के साथ रहते थे। ये मोहब्बतें हैं नबी के सहाबा में और नबी के अहले बैत में। लेकिन लोग तो मरोड़ के जमाने की बातें, झूठे ढकोसले बातें पेश करते हैं। ये लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, माअल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या पाक लोगों के साथ ऐसा तसव्वुर किया जाता है? हाजिरीन मैं एक मिसाल दूंगा, मिसाल सिर्फ समझने के लिए दे रहा हूं, ऐसा तो हुआ नहीं मगर सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूं। कौन सा घर है जिसमें मियां बीवी नहीं झगड़ते? हो ही नहीं सकता मियां बीवी ना झगड़े हों, नाराजियां और कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, जिंदगी है, मामला ऐसे ही होता है। क्या बच्चे अपने माँ बाप के झगड़े दूसरों के सामने सुनाते हैं? क्या उन झगड़ों को झगड़ा भी कहते हैं जो मियां बीवी आपस में लड़ते हैं, माँ बाप आपस में जो गुफ्तगू करते हैं? कोई झगड़ा उसे नहीं कहता, वो तो कहते हैं वो मोहब्बत है, मोहब्बत में एक दूसरे को बोल लेते हैं।
تو हाजिरीन, हमारे माँ बाप की मोहब्बतों से बढ़कर अहले बैत और सहाबा की मोहब्बतें, उनके दरमियान मान ले कुछ बातें हो तो भी वो वैसी नहीं है जैसे हमारे और दूसरों के दरमियान में होती है। वो मोहब्बतों की वजह से हुए थे जो भी मामला हुए थे। खैर, तो अर्ज करने का मतलब ये है कि अहले बैत किराम के साथ, हसनैन करीमैन के साथ कैसी मोहब्बत सहाबा किराम करते थे। उनमें एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौरे खिलाफत में जो सहाबा किराम के बच्चे जंग में शरीक होते थे उनको माले गनीमत तकसीम फरमाते थे। माले गनीमत सहाबा किराम के बच्चों को 1,000 रुपये देते थे, और बद्र में, जंगे बद्र, जंगे उहुद में जो सहाबा शरीक थे उनके बच्चों को 2,000 रुपये देते थे। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों को 5,000 रुपये दीनार देते थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह, बड़ी उम्र के थे। इमाम हसन इमाम हुसैन से तकरीबन और 11 साल कुछ बड़ी उम्र थे। तो उन्होंने पूछा अपने वालिद से कि अब्बा, आप मुझे 2,000 रुपये देते हैं, बाकी दूसरे सहाबा के बच्चों को 2,000 देते हैं, और हसनैन करीमैन को आप 5,000 रुपये देते हैं, ये कैसी मोहब्बत है आपकी औलाद से। तो हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि बेटा, मैं हसनैन करीमैन को 5,000 माले गनीमत इसलिए देता हूं कि वो मेरे नबी के, मेरे आका के चहीते। क्या हुजूर तुमसे वो मोहब्बत करते थे जो इमाम हसन से, इमाम हुसैन से करते थे? तुमसे नहीं करते थे, उनसे करते थे, इसलिए मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाते हैं मैं तुमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। ये सहाबा किराम हैं जो इमाम हसन, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते थे। ऐसी मोहब्बतें आज हम कहाँ ला सकते हैं? इसलिए हाजिरीन, दुनिया में लोगों को देखकर मोहब्बतें नहीं सीखना चाहिए, सहाबा किराम को देखकर अहले बैत की मोहब्बत सीखी, क्योंकि सहाबा से बढ़कर अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनकी मोहब्बतें सबसे बड़ी मोहब्बतें और सबसे पाक मोहब्बतें, बेमतलब की मोहब्बतें। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये हाल है। बहरहाल, अब जो मुकद्दर है वो मुकद्दर है, उसको टाला नहीं जा सकता। फैसला है अल्लाह ताला का, तकदीर है। अल्लाह ताला यही चाहता था इमाम हसन को जहर दिया जाए, अल्लाह ताला यही चाहता था इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया जाए। तो रब का जो फैसला है वही होता है, कोई बंदा उसे टाल नहीं सकता। लेकिन एक बात याद रखे, हमारे आका हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर दुआ फरमाते, यकीनन ये शहादतें टल जाती, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ नहीं की, क्योंकि सरकार जो दुआ फरमाते हैं वो दुआ जरूर कबूल होती है। सही बुखारी की हदीस है, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करना चाहे, क्या दुआ करना चाहे? ए अल्लाह, मेरी उम्मत में इख्तिलाफ ना हो। कितनी बड़ी दुआ थी माशाअल्लाह। अगर वो हो जाती तो क्या मोहब्बतों से रहते थे मुसलमान। लेकिन रब ने फरमाया नबी आप ये दुआ मत करिए, आप चाहते थे अभी करे नहीं थे, अल्लाह ने हुक्म फरमाया आप ये दुआ मत कीजिए, आपकी दुआ मैं रद्द नहीं करता। ये फैसला है मेरा कि उम्मत आखिरी जमाने में इख्तलाफ करेगी, क्योंकि इख्तलाफ करेगी तो कमजोर होगी, कमजोर होगी तो दुश्मन ताकतवर होगा, दुश्मन ताकतवर होगा तो जुल्म करेगा, जुल्म होगा तो मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो यहूदियों को तबाह करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। ये हालत बनना जरूरी है, इसलिए इख्तलाफ हमारे दरमियान में। अब ये इख्तलाफ कोई मिटाना चाहा तो नहीं मिटने वाला है, मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह देना चाहे तो कब मिटा सकता है। हाँ, इतना है कि हम अपना दिल बड़ा रख के इख्तलाफ जो भी होगा होने दो, मगर दिल बड़ा करके दरगुजर कर दे, माफ कर दे, बस इसी में सलामती है हमारे लिए। माफ करने का बदला मिलेगा, सब्र करने का सवाब मिलेगा, इसमें हमारे लिए सलामती है। बहरहाल हाजिरीन, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी टालना नहीं चाहिए। हुजूर ने खुद कबूल फरमाया, मेरे रब का फैसला है, मैं भी कबूल करता हूं। अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, बाज लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, देखो लोग तुम समझते हैं, तुम्हारा ये ख्याल है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की मदद फरमाते हैं, हुजूर अगर मदद फरमाते हैं तो इमाम हुसैन की मदद क्यों नहीं करे मैदान करबला। कितने अफसोस की बात है, इंसान का जहन इतना गंदा भी होता है।
इतना गंदा भी होता है। ताज्जुब की बात, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? इमाम हुसैन की शहादत यकीनी है, इसलिए हुजूर ने नहीं बचाया, वरना नबी बचाना चाहे तो किसको नहीं बचाया? आपको बताऊं मैं, सही बुखारी की हदीस है, एक सहाबी की पांव की हड्डी टूट गई, एक दुश्मन को मारना था, मारकर आए, पांव की हड्डी टूट गई। हुजूर की खिदमत में आके अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने दुश्मन का काम तो तमाम किया, लेकिन मेरे पांव की हड्डी टूट गई। किताबुल मगाज़ी में है, बुखारी जिल्द 2 में, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, उनके हड्डी पर हाथ फेरा, वो फरमाते हैं ऐसे जुड़ गई कि कभी टूटी नहीं थी। उसी वक्त आप बताइए, हड्डी टूटने के बाद जोड़ने के लिए 6 महीने तो कम से कम लगते हैं, वो कुव्वत, वो मजबूती आने के लिए। उसी लम्हा हड्डी जुड़ गई, बुखारी की हदीस है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की नहीं की? कौन कहता है हुजूर मदद नहीं कर सकते? मादल्लाह, अल्लाह ने हमारे नबी को मुख्तार बनाया, आज भी हुजूर मदद फरमाते हैं, उसी जमाने की बात नहीं है, आज भी मदद फरमाते हैं। उसकी क्या दलील है? सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, ऐ लोगों, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं। तकसीम सब नेमतें हुजूर करते हैं, बीमार हुए सेहत अल्लाह देता है, तकसीम हुजूर करते हैं, कमजोर हुए कुव्वत अल्लाह देता है, हुजूर तकसीम करते हैं, गरीब थे दौलत अल्लाह देता है, हुजूर तकसीम करते हैं, जाहिल थे इल्म अल्लाह देता है, हुजूर तकसीम करते हैं। कौन मदद कर रहा है? बुखारी कह रही है, तो क्या इसमें ताज्जुब की बात है? अपने अकीदे दुरुस्त रखने चाहिए, गलत सलत लोगों के साथ बैठ के अकीदे ना बिगाड़े। ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी दौलत है, ये महफूज तो सब महफूज। बहरहाल हाज़िरीन, हज़रत हसनैन करीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की शहादत हुजूर खुद पसंद फरमाते थे कि मेरे नवासों को वो मकामात मिले जो शहीदों के मकामात होते हैं। अल्लाह ने वो दर्जा दिया कि सारे शहीदों से बढ़कर फजीलत दी, इसलिए इमाम हसन को भी, इमाम हुसैन को भी शहादत उज़्मा अता फरमाई, सबसे बड़ी शहादत पिछले जमाने के सहाबा के अलावा। ऐसा नहीं है कि हजरत उमर से बड़े शहीद, हजरत उस्मान से भी बड़े शहीद, हजरत अली से भी बड़े शहीद, ये माना मुराद नहीं है। उन खुलफा के बाद वाले जो हजरात क़यामत तक आने वाले हैं, सबसे बड़ी शहादत इमाम हसन की भी है, इमाम हुसैन की भी, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। अब ये हालात क्यों बने, क्यों ऐसा हुआ, इसके कुछ तफसीलात मैं आपके गोशेगुजार करूंगा, कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की विलादत होते ही हुजूर ने बता दिया था कि मेरे इस नवासे को शहीद कर दिया जाएगा, जब ही फरमाया, ये भी बुखारी शरीफ में। इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, मैं हजरत अली के साथ इराक में करबला के मैदान में रात के वक्त गुजर रहा था और बहुत सारे हजरात भी थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, ये कौन सी जमीन है कि यहाँ से मुझे कुछ खास खुशबू महसूस हो रही है? तो लोगों ने कहा कि हजरत ये करबला की जमीन है। हजरत अली फरमाते हैं, हुसैन आपको यहाँ शहीद किया जाएगा, जगह बताएं, यहाँ आपको शहीद किया जाएगा, यहाँ आपके घर वालों के खैमे होंगे, यहाँ पानी के नहर बह रही होगी, वो रोक दी जाएगी, पानी पर पाबंदी लगा दी जाएगी। जितने शहीद थे उनके तफसीलात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले ही बयान फरमा दी। हाज़िरीन, जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, ये भी साहबी रसूल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद में, इमाम हसन के बाद में दीन इस्लाम के खलीफा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। हुजूर ने इनकी तारीफ में फरमाया, ए अल्लाह, मुआविया से हिसाब और किताब न ले, इनको सीधे जन्नत में दाखिल फरमा। और एक हदीस पाक में आता है, मैदान महशर में 5000 साल गुजर गए, सहाबा इकराम तलाश कर रहे थे हजरत मुआविया कहाँ है, तो 5000 साल के बाद हुजूर की खिदमत में आए। लोगों ने पूछेंगे क़यामत के दिन कहाँ थे आप? तो कहते हैं, मैं अल्लाह की खास रहमतों में था, खूब रहमतें लेने के बाद अब वापस आ। 5000 साल लोगों से पोशीदा होंगे अल्लाह की रहमतों में, ऐसे खलीफा सहाबी है। इनके बारे में भी ये बाज सहाबा के दुश्मन बड़ी बदकलामी करते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, आपके बारे में नाम सुनना गवारा नहीं करते, इतने बददुआ। अल्लाह के नबी ने जिनकी तारीफ की,
बहरहाल हाज़रीन, इन हजरात के दरमियान में जो भी मामलात थे वो अल्लाह जाने, रसूल जाने, उनके मामलात है, हमको उस बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन फजीलत मानना हम पर लाजिम है। बहरहाल हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर मदीना तर्क कर दिए, छोड़ दिए, हुजूर से इजाजत लेकर शहर मक्का आए। क्यों आए? इसलिए कि यजीद फौरन तख्त नशीने का ऐलान कर दिया। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बादशाह नहीं बनाया, वो खुद अपने तख्त नशीने का ऐलान किया था, ऐलान कर दिया, माहौल बना लिया। फिर उसके बाद यजीद ने एक आदमी को इमाम हुसैन के पास भेजा और कहला भेजा कि आप यजीद को अपना खलीफा मानिए, इमाम मानिए, उसके हाथ पे बैत कीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की शरारतों को पहले से जानते थे। क्यों नहीं जानते? इसलिए कि हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजरत अली की शहादत के बाद तकरीबन 5 साल तकरीबन हर साल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के पास मुल्क शाम जाते थे, कई महीने उनके पास रहते थे। उसके बाद हजरत मुआविया उनको तोहफे तहाइफ देके भेजते थे, मदीना आते थे। ये मोहब्बतें थी उन हजरात की, सहाबा किराम की, अहले बैत किराम की मोहब्बतें थी। तो खैर वो जानते थे कि ये कितना बदबख्त है और कैसा शरीर है, कैसा बेनमाजी है। बेनमाजी था यजीद, कुत्ते पालता था और शहर मक्का में तबाही मचा दिया था। काबे के गिलाफ को माशअल्लाह इसकी फौज ने जला दिया था। अल्लाह के नबी की मस्जिद को 3 दिन तक बगैर नमाज के बंद कर दिया गया था, ना अजानें हुई, ना नमाजें हुई। इतना बदबख्त था यजीद। इमाम हुसैन जानते थे पहले ही से कि अगर इसको अमीर मान लिया जाए तो फिर ये इस्लाम को तबाह कर देगा। इसलिए आपने कहा कि मैं उसे अपना अमीर नहीं मानता। ये कहकर आप शहर मक्का आए। मक्का शरीफ जब पहुंचे, अभी रास्ते में भी थे कि कूफा वालों ने, जो कूफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दारुस सल्तनत था पहले से, इसलिए कूफा वाले हजरत अली और उनके शहजादों से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर खौफ और दुनिया की दौलत की वजह से वो मोहब्बत खत्म हो गई उनकी, माज़अल्लाह। गौर किया जाए। बहरहाल तो उन लोगों ने खत लिखा हजरत इमाम हुसैन को। कितने खत आए? 2 बड़ी बड़ी थैलियां भरे हुए थे। इतने सारे लोगों ने खत लिखे, आप आइए, आपके हाथ पे हम बैत करेंगे, यजीद को अपना इमाम नहीं मानेंगे। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर मक्का में चंद महीने क़ियाम के बाद, करीब 8 महीने मक्का में रहे। उसके बाद वहां से आप कूफा की तरफ गए। जब आप कूफा की तरफ जा रहे थे, सहाबा किराम को मालूम हुआ, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुद इमाम हुसैन के भाई थे हजरत अली के शहजादे मोहम्मद इब्न हनफिया, ये कौन है? इनके बारे में हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हें एक लड़का होगा, उसका नाम मैं मोहम्मद रखता हूं। उनके पैदा होने से पहले हुजूर ने उनका नाम मोहम्मद रखा, मोहम्मद इब्न हनफिया, हजरत अली के दूसरी अहलिया से शहजादे। तो इन्होंने ये सब हजरात ने इमाम हुसैन से कहा कि आप मत जाइए कूफा, क्योंकि कूफे वालों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। इन्होंने आपके वालिद मोहतरम को भी धोखा दिया था। क्या आप उम्मीद रखते हैं ये लोग वफा करेंगे? तो इमाम आली मकाम फरमाते हैं ये बात सब सही है, मगर बात दरअसल ये है कि मैं भी जानता हूं ये वफादारी नहीं करेंगे। गौर कीजिए कितना बड़ा सब्र है। मालूम है कि ये जो लोग बुला रहे हैं वो मेरे दुश्मन होंगे, मगर फिर उन्हीं के पास जा रहा है। ये क्या है? अल्लाह का मंशा, रब के फैसले को मानना इसको कहते हैं। सब्र और रिजा का मकाम ये होता है, तस्लीम का मकाम ये होता है, इस्तिकामत का मकाम ये होता है। कौन बर्दाश्त कर सकता है? हमको मालूम है यहाँ पर एक गड़ा है तो रास्ता बदल के जाएंगे। इमाम हुसैन को मालूम है कूफा जा रहे हैं, कूफे वाले ही शहीद करेंगे, बेवफाई करेंगे, मगर फिर वही जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि रब का फैसला यही है कि वहां शहादत हो, मेरा रब जो कहे मैं उसी को मानता हूं। ये शान है हजरत इमाम हुसैन की। तो हाज़रीन आप फरमाते हैं मैंने मेरे नाना हजरत से वादा किया कि उस वादे को पूरा करने के लिए, एक राज है मेरे और मेरे नाना के दरमियान, उस राज को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए सहाबा किराम को वो राज नहीं मालूम था, उन्होंने इसलिए मना किया। तो बहरहाल हाज़रीन हजरत इमाम आली मकाम मैदान करबला तक पहुंचने से पहले रास्ते में आपको मालूम हुआ कि आप पहले अपने एक चचेरे भाई को भेजे थे हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला कि आप वहां हालात मालूम करें, अगर हालात दुरुस्त हो तो मुझे खत लिखें। तो मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा के हालात दुरुस्त है, 10,000 लोग मेरे हाथ पे बैत किए हैं कूफा के।
जब मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ाते तो 10,000 लोग उनकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते थे। 3-4 दिन तक ये मामला रहा। इब्ने जियाद आया, ऐलान कर दिया यजीद की तरफ से, इब्ने जियाद गवर्नर बनकर आए। इससे पहले वहां जो गवर्नर थे वो एक सहाबी थे, हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने नरमी का मामला किया था, इसलिए कूफा वाले तायीन में आ गए। इब्ने जियाद आया जालिम बनकर, उसने ऐलान किया जो मुस्लिम बिन अकील के साथ रहेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, उसके घर वालों को मार दिया जाएगा। ये डर के सारे लोग नमाज फज्र में 10,000 लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे थे। सलाम फेरने से पहले 2-4 लोग रह गए, बाकी सब चले गए। डर खौफ मोमिन को नहीं होना चाहिए, ये डर था, इसी वजह से ये लोग इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिए। इसलिए अपने अंदर हिम्मतें पैदा करनी चाहिए। तो बहरहाल हाजिरीन, हजरत इमाम आली मकाम को मालूम हुआ मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। आप अभी रास्ते में थे तो आपने ऐलान किया अपने साथ रहने वालों से कि मैं ऐलान करता हूं, तुम्हें छुटकारा देता हूं, तुम जहां जाना चाहो जाओ। अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, पहले हालात हमारी मुवाफकत के थे, अब मुखालफत के हैं। लेकिन कोई नहीं गए, सब बैठे रहे। रात के वक्त में फिर हजरत ने चराग बुझा दिया और ऐलान किया अंधेरा है, जो जाना चाहे जाए, मैं तो चेहरा भी नहीं देखूंगा, और ये भी वादा करता हूं क़यामत के दिन भी तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम मुझे छोड़ के क्यों गए। तो भी कोई नहीं उठे, सब उसी जगह बैठे रहे। ये इमाम हुसैन के सच्चे जानिसार थे, उनमें सहाबा किराम भी थे, सहाबा की औलाद भी थी। बहरहाल हाजिरीन किराम, हजरत इमाम आली मकाम का रास्ता इब्ने जियाद ने रोका। आपने फरमाया कि मैं लड़ना नहीं चाहता, आपको खिलाफत या फिर हुकूमत सल्तनत की कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्या जरूरत है, वो जन्नत के सरदार है, उनको दुनिया की क्या जरूरत है। उनके दिल में मोहब्बत ही नहीं थी दुनिया की। अरे तो एक एक मर्तबा में एक एक मांगने वाले को इतनी बड़ी बड़ी थैलियां सोने के सिक्के दे देते थे, उनको दुनिया की क्या गरज। ऐसी शख्सियत हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। तो आप कूफा या करबला दौलत के लिए, मनसब के लिए नहीं गए थे, लोगों ने बुलाया था, हम बैत करेंगे आपके हाथ पे, इसलिए गए थे। लेकिन जब मालूम हुआ तो रास्ता बदल देना चाहा। इब्ने जियाद से आपने फरमाया मेरा रास्ता छोड़ दो, या तो मैं शहर मक्का चला जाऊंगा, या फिर यजीद से मुझे मिला, मैं दिमिश्क जाकर उससे डायरेक्ट रास्ता बात करूंगा कि मामला क्या है, क्यों इस तरह रास्ते तय किए जा रहे हैं, या फिर मुझे रास्ता छोड़ दो, मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। लेकिन इन बदबख्तों को क्या था, इन बदबख्तों को इनाम का लालच था। इनाम दिया गया था, ऐलान किया गया था कि इमाम हुसैन को अगर कोई शहीद करे तो उसे फला मुल्क की सल्तनत दी जाएगी, वो गवर्नरी दी जाएगी, इतने पैसे दिए जाएंगे, इतनी जमीनें दी जाएंगी। तो ये दुनिया की दौलत की मोहब्बत में आकर इन लोगों ने इमाम हुसैन को मजबूर किया कि वो कूफा आए। जब आप मैदान करबला में आए तब चारों जानिब से रास्ते बंद कर दिए गए और आपको मजबूर किया कि आप जंग करें। आप नहीं चाहते थे जंग करना, मगर मजबूर किया गया। तो इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद, तीसरे दिन यानी आशूरे के दिन 10वीं मुहर्रम की नमाज फज्र के बाद मैदान करबला में आप खुद उतर आए और 2000 यजीदियों को जहन्नम रसीद किया। 3 दिन के भूखे प्यासे, अकेले, भूख है, प्यास है, मगर कुव्वत ऐसी है। कैसे कुव्वत? ये कुव्वत, ये ताकत अल्लाह के नबी की दी हुई ताकत। हदीस शरीफ है सही तिरमिज़ी की कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को गोद में लेकर फरमाते हैं, मेरे बेटे हुसैन को मैंने मेरी बहादुरी और ताकत दे दी। हुजूर पाक अलैहि वसल्लम की कुव्वत थी इमाम हुसैन के जिस्म पाक में, इसलिए भूखे प्यासे रहकर भी नाश्ता ना करें तो 1 घंटा बोल नहीं सकते हैं। वो क्या ताकत थी माशाअल्लाह, क्या रूहानी कुव्वत थी। 2000 लोगों को जहन्नम रसीद किया। आखिर लागर हो गए, घोड़े की पुश्त पर बैठ ना सके। नमाज का वक्त आया, जंगबंदी का ऐलान करके आपने नमाज के लिए रकात बांधी। उसके बाद सजदा किया। सजदे की हालत में ये जो बदबख्त थे उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन से पहले 8-8, 10-10 लोग लड़े, सबको मार दिया। 20-20, 40-40 आए, उनसे भी मुकाबला किया। सैकड़ों की तादाद में आए, सबको खत्म कर दिया। 2000 लोगों को अकेले फजर से जोहर के दरमियान खत्म किए। वो फजर पढ़ के आए थे, वो कुव्वत थी। अब अगर ये जोहर पढ़ेंगे
اور سلام پھیریں گے تو اصل سے پہلے سب کا صفایا کر دیں گے۔ سمجھیے نماز کی طاقت کیا ہے۔ میدان کربلا میں بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ فجر کی قوت اتنی ملی کہ 2000 کو مارا۔ ظہر پڑھ لیتے تو نہیں معلوم شام تک کیا حشر ہو جاتا۔ اس لیے ان بدبختوں نے نماز بھی پوری کرنے نہ دی، ایک ہی رکعت ہوئی، سجدہ کیا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو اسی حالت میں شہید کر دو، سلام پھیرنے نہ دو۔ کیونکہ بندہ جب نماز میں قاعدے میں ہوتا ہے، سجدے میں تو اللہ کے دربار میں ہوتا ہے، قاعدے میں نبی کے دربار میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی جو ہم پڑھتے ہیں، حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم حضور کے پاس جاتے آتے ہیں، یہ تصور ہونا چاہیے ہے کہ سلام کس کو کرتے ہیں؟ جو موجود ہے ان کو کرتے ہیں، جو سنتے ہیں انہی کو کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر امام حسین حاضر ہوئے، قاعدہ کر لیے، تو سمجھیے کہ وہ قوت پھر دوبارہ ملے گی، اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے سجدے کی حالت میں آپ کے گردن مبارک کاٹی گئی، سر انور کو جدا کر دیا گیا تن مبارک سے۔ اب حاضرین غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو ہونا وہ ہوا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہید کرنے والے جو ظالم ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے مجرم ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں، کفار سے بھی بدتر ہے۔ کافروں کی ذلت ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی، لیکن ان بدبختوں کی ذلت اس لیے ہے کہ انہوں نے نبی کی نسبت کا بھی خیال نہ کیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہادت کے پہلے رات میں کسی نے خواب دیکھا، میدان کربلا میں رہنے والے حضرات نے، کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں تشریف لائی ہیں اور وہاں جھاڑو دے رہی ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں تشریف لائی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کل میرے بچے حسین کو شہید کیا جائے گا اور وہ اسی جگہ زمین پہ گریں گے، ان کے بدن کو پتھر کنکر نہ چبھے، اس لیے میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ عالم ارواح میں امام حسین کی راحت کا اتنا لحاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غور کیا جائے پھر وہ کتنے بدبخت لوگ تھے جو دیکھتے تھے امام حسین کو، نبی کا حسن و جمال ان پہ نظر آتا تھا، مگر کیا ہو گیا تھا ان کو؟ ہوا یہ تھا کہ دنیا کی محبت دل میں آئی، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، منصب کی محبت، کرسی کی محبت۔ یہ محبت اتنی بری ہوتی ہے کہ آدمی کے آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، وہ نبی کے نواسوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ اس لیے دلوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کی محبت آ گئی، ماں باپ بھی ذہن میں نہیں رہتے، بھائی بہن سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے، صرف 2 گز زمین کے لیے، تھوڑی سی بات کے لیے جھگڑے۔ یہ اتنی منحوس اور لعنتی دنیا کہ کلمہ پڑھنے والے بظاہر وہ مسلمان تھے نہیں، مگر بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نبی کی نسبت سمجھ میں نہ آئی۔ آخری ایک بات عرض کروں گا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لے کر یہ یزیدی دمشق جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک کلیسا تھا جو عیسائیوں کے عبادت خانہ ہوتا ہے، وہاں پر کچھ دیر کے لیے ایک رات گزارنے کے لیے لوگ رکے۔ وہاں جو ان کے مذہبی پیشوا تھا، مذہبی عالم تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی چہرہ ہے، صندوق ہے، وہ صندوق کے اندر سے نور نکل رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم سچ بتاؤ یہ صندوق میں کیا ہے، ورنہ میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک سر ہے۔ کس کا سر ہے؟ تو کہتے ہیں امام حسین کا۔ وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا امام حسین کو۔ اس نے پوچھا امام حسین کون ہے، تم جانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہاں ہم جانتے ہیں، ہمارے نبی کے نواز۔ استغفر اللہ، غور کیجئے کتنے دل سخت اور پتھر ہو چکے۔ تو وہ عالم، ان کا عیسائیوں کا عالم، وہ مذہب کا پیشوا، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تم 10,000 درہم لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، میں یہیں رہوں گا۔ چنانچہ وہ صندوق لے کر وہ ایک اپنے کمرے میں گیا، ریشم کا کپڑا بچھایا، امام حسین کے سر انور کو رکھا، اس پہ عطر وغیرہ داخل کیا،
फिर उसके बाद दुआ करने लगा, है अल्लाह तेरे बंदों से इतनी बड़ी खता हुई, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ फरमा दे, मैं कुछ नहीं कर सका। अब रात भर रोते रहा, दुआ करते रहा। सुबह होने से पहले वो मुसलमान हो गए, दिल की कैफियत बदल गई। तो इमाम हुसैन की मोहब्बत अगर काफिर के दिल में भी आता है तो मुसलमान हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। और नाम के कलिमा पढ़ने वाले जब मोहब्बत नहीं रहती फिर वो इस तरह के काम अंजाम देते हैं। फिर उसके बाद उस शख्स ने कहा, सर तो हवाले कर दिया और कहने लगा, सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से तशरीफ ले जाकर आसमान पे जाके 500 साल से ज्यादा अरसा हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस सवारी पर सवार होते थे, उस जानवर का खुर, जो पांव का हिस्सा होता है, खुर, वो आज हमारे पास एक मकाम पर है। उसकी जियारत के लिए सारे ईसाई दुनिया से ऐसे जाते हैं जैसा कि तुम हज के लिए जाते हो। 500 साल के बाद सवारी के खुर की हमारे पास इतनी अहमियत है। अभी 100 साल में गुजरे, तुमने नबी के नवासों को शहीद कर दिया। कितने बदबख्त हैं तुम लोग। ईमान का हिस्सा है हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत, मगर इन सब बातों के साथ हाजिरीन हद से तजावुज नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत के नाम पे लोग बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, सीने पीटने लगते हैं, सीने पीटते हैं, मातम करते हैं। इस्लाम में बिल्कुल मना है, हराम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग गम में सीने पीटते हैं, मातम करते हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बाद लोग देखा देखी काला लिबास भी पहनने लगे। माह मुहर्रम में काला लिबास गम के तौर पर पहनना अहले सुन्नत व जमात के पास जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। हमारे फुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि गम के लिए काला लिबास पहनना औरत के लिए भी जायज नहीं है। अगर वो शौहर के गम में काला लिबास पहनती है तो 3 दिन पहन सकते, उससे बढ़कर नहीं। शौहर के गम में वो भी, मर्द के लिए तो बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये नाजायज कामों में मत पड़िए। देखिए, गम का ताल्लुक दिल से होता है, गम का ताल्लुक दिल से होता है, लिबास से बताई जाने वाली वो कोई चीज नहीं है। अगर वाकईतन इमाम हुसैन से हमको मोहब्बत है तो आशूरे के दिन कम से कम 1, 2, 5 पारे पढ़िए, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अपने घर जाकर बच्चों को सबको बिठाकर कम से कम 100 मरतबा कलीमा पढ़िए, फिर उसका सवाब हजरत की खिदमत में पेश कीजिए। मोहब्बतों का इजहार ऐसे होता है, नाजायज तरीके से, शोर ढोल ताशे और नहीं मालूम और क्या क्या काम है, इन सब कामों से मोहब्बत नहीं होती। इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, ना अहले बैत से ताल्लुक है, ना उनकी मोहब्बत से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है। इसीलिए हम देखते हैं अहले सुन्नत व जमात में जमाना कदीम से ये तरीका राइज किया गया है। आशूरे के दिन खासतौर पर लोग मस्जिदों में जमा होते हैं। पहले तो खत्म कुरान भी करते थे, आजकल वो नहीं हो रहा है। करना चाहिए, सारे मुसलमान जमा हो, एक एक पारा तो कम से कम मिलकर पढ़े। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की खिदमत में, अहले बैत किराम की खिदमत में, शुहदाए करबला की खिदमत में सवाब पेश करे। तन्हा तो कम से कम रहकर पढ़े। ये तरीके मोहब्बतों के होते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह ताला अहले बैत किराम की फजीलतें समझने के हमें तौफीक अता फरमाए, उनका फैजान, उनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए, उनकी शहादत के तसद्दुक में तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए, कल क़यामत के दिन उनकी सोहबत हमें अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।